Okay, welcome students. So today we are starting the topic surface area and volumes. Okay, so here in this chapter, basically the whole chapter has been divided into three parts. Part number 1 is based on the surface area and part number 2 is based on volume. Now surface area part is divided into two parts. The two parts are, we have to find the surface area when the two objects are joined end to end, and we have to find the volume when two objects are joined end to end. Means this is called combination of solids. This topic is known as what? Combination of solids. Combination of solids. Like if I join a cone with a hemisphere, if I join a cylinder with a hemisphere, so here we have to find the total surface area and volume. So these are the two parts for the first two exercises. Means in the first exercise we have to find the surface area when the two objects are joined, and in the next exercise we have to find the volume of the solid which is formed on joining the two objects. Okay, so we have to find the total surface area of this solid and total surface area of this solid, or we are finding out the volume of these two types of solids and many more. Not only these two types of solids, there are so many types of solids, but they come under the category of combination of solids. So combination of solids, and the second part is conversion of solids. So in conversion what we do, that I will explain you when we start the third exercise. So here for the first exercise, let us start with the question. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Two cubes of volume 64 centimeter square. You know that volume of cube is a cube, 64 centimeter square. We know that 64 is the cube of 4. So the side of those cubes which are joined end to end is 4 centimeter. The sides of the cube which are joined end to end is 4 centimeter. Now what will happen when we join the two cubes end to end? This is the first cube, this is the second cube. When they are joined, they are now no more cube. ये अभी क्या थे? ये cube थे. When they are joined, they will become a cuboid. What they will become? They will become a cuboid. When two cubes are joined, what is formed? A cuboid is formed, and the length of cuboid will be 8 centimeter, because this is 4, this is 4. Breadth of cuboid will be 4 centimeter, because it will be 4, and height also not change, that will be also 4 centimeters. We have to find the surface area of the resulting cuboid. The surface area of cuboid means the total surface area of cuboid, and the formula is twice into LB into BH into HL, 30, 32, 32 and 16. So it is 160 centimeter square. So in this way, we will be finding out the
total surface area of the new object which is formed after the combination of two objects. So let's move on to the next question, and the question is, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder. माउंटेड मतलब ऊपर, इस प्रकार से कह रहा है वो, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder, mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. ध्यान रखिएगा डायमीटर दिया हुआ है, and the total height of the vessel is 13. Total height of the vessel is 13. अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हमें सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना होगा। और कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमारे पास में हाइट ऑफ द सिलेंडर होना चाहिए। तो अगर हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारे पास में है तभी हम कट सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो हाइट कैसे निकलेगी सिलेंडर की? बच्चों यहां ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये रेडियस कहलाती है, हेमिस्फीयर का रेडियस कहलाती है। ये रेडियस अगर 7 है तो ये भी 7 होगा, ये दोनों 7 होंगे, और अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर हो गया तो बची हाइट वो 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो इस प्रकार से हाइट ऑफ सिलेंडर हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड cylinder both is 7 centimeter because the diameter is given 14 centimeter. Now total surface area of this solid, total surface area of solid will be equal to cut surface area of hemisphere plus cylinder. The cut surface area of hemisphere is 2 pi r square because the total surface area of a sphere का total surface area जो होता है वो 4 pi r square होता है। तो हेमिस्फीयर का जो हेमिस्फीयर का जो कट सरफेस एरिया होगा वो उसका आधा होगा 2 pi r square, और सिलेंडर का 2 pi r h। आप देख रहे होंगे दोनों में r मैंने एक जैसा लिया है क्योंकि r अलग अलग नहीं होता। जब भी आप दो फिगर को जोड़ते हो तो r जो होगा वो डिफरेंट नहीं होगा, इसीलिए अपन ने 2 pi r कॉमन लिया और ब्रैकेट में बचा r प्लस h। अब वैल्यू पुट करो, द वैल्यू ऑफ r, द वैल्यू ऑफ h, एंड फाइनली वी विल बी गेटिंग 44 into 13, so it is 572 centimeter square. The next answer, yes, correct. Now ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेशन देख लीजिए कैसे किया। अलग अलग कैलकुलेशन नहीं किया, आपने देखा मैंने जो कैलकुलेशन करा है वो अलग अलग नहीं है। वो कैलकुलेशन जो है वो साथ में ही किया है, कॉमन लेकर के किया है ताकि कम मेहनत लगे हमारी और सवाल हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाए। देखो अगर अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, r की वैल्यू यहां पर भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती, r की वैल्यू यहां पर भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती, h की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती, और फिर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लग जाती है हमारी इसको कैलकुलेट करने के लिए। इसीलिए कॉमन लेकर अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of a cone of radius 35 centimeter mount on a hemisphere. एक टॉय है
जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर कोनिकल शेप में है, हेमिस्फीयर और ऊपर कोनिकल। टोटल हाइट जो है इसकी टॉय की वो 13.5 सेंटीमीटर है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 13.5 सेंटीमीटर, सॉरी, total height of the toy is 15.5 centimeter, and the radius of toy is 3.5. Radius of the toy is 3.5 centimeter. We have to find the total surface area of the toy. Here also, to get the total surface area, we must know the height of the cone. So when this is 3.5, so this is also radius, so it will be also 3.5. So when 3.5 is subtracted, what you will be getting? 12 centimeter. So the height of the cone is 12 centimeter. But students, you know very well that to get the cut surface area, slant height is required. So what will be the formula for slant height of cone? L square is equals to h square plus r square. So h square is 12 square, r square is 3.5 square. The square of 12 is 144 and the square is 3.5 is 12.25. So when you add it, 144 with 12.25, it will be 165.25, 156.25, and which is the square of 12.5. So therefore, we got the slant height equal to 12.5 centimeter. Now, the total surface area of toy will be equal to cut surface area of cone plus hemisphere, that is pi r L plus 2 pi r square. Pi r we have taken common, so the value of r, the value of L, so in this way when we are calculating it, this get cancelled 0.5 times, and this will be 11 into 19.5, that is 214.5 centimeter square. So in this way we will get the solution of the third question. Now students, two very important questions are coming. Although they are same, but the situations are different. Now how to handle those situations? Two different situations, but the result is same. In the first, a cubical box of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? अब देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर किसी क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा जाएगा तो वो तभी ठीक से रखा पाएगा जब उस क्यूब की साइड उसके डायमीटर के बराबर हो। अगर हम ये हमारी हथेली को क्यूब का टॉप सरफेस मान लें और इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखें, तो उस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो उस क्यूब के साइड के बराबर होना चाहिए।
ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमसे यही पूछा गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर। सो डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब। So diameter of hemisphere is equals to the side of the cube, and the side is 7. So we got the value of radius, that is 7/2. So it is 3.5 centimeter. Now the question rises that when we put a hemisphere over a cube, what will happen? What new type of solid is generated, and what will be the total surface area of that solid? That we must know. बच्चों, अगर हमने क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है तो इस क्यूब के 5 सरफेस का तो कोई चेंज नहीं हुआ। जो इसके 5 सरफेस थे उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। आपने क्यूब को जिस सरफेस पे रखा है सिर्फ वही सरफेस में परिवर्तन आया है, बाकी सारे सरफेस जो हैं वो जैसे के तैसे हैं। और क्यूब में हर एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू 5 क्यों? क्योंकि 5 जगह ऐसी हैं जहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सरफेस में परिवर्तन सिर्फ वहीं पर हुआ है जहां पर आपने क्यूब हेमिस्फीयर को रखा है। जिस सरफेस के ऊपर आपने हेमिस्फीयर रखा है ठीक वहीं पर परिवर्तन हुआ है, वहीं पर शेप बदल गया है। अब वहां पर फ्लैट सरफेस नहीं है, अब वहां पर एक हेमिस्फेरिकल शेप दिख रहा है। लेकिन बाकी 5 सरफेस में कोई परिवर्तन नहीं है, वो पूरे पांचों के पांचों एज इट इज हैं। इसीलिए 5a स्क्वायर हमने ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है। यहां पर जो a है वो साइड ऑफ द क्यूब है a, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करें छठवें सरफेस की। 5 सरफेस तो जैसे के तैसे हैं, छठवां सरफेस जो है वो सरफेस पहले कैसा था? अगर हम उसका टॉप व्यू लें तो वो पहले ऐसा था, उसके बाद में फिर हमने उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया ऐसे करके। तो हेमिस्फीयर का जो उठा हुआ पोर्शन होता है वो होता है 2πr स्क्वायर। ये जो ऊपर ऐसा ऐसा जो पोर्शन रहता है ना, ये वाला जो पोर्शन रहता है उठा हुआ जो पोर्शन रहेगा वो है 2πr स्क्वायर। लेकिन अभी भी ये कुछ सरफेसेस बच गए। ये जो 4 कोने जो हैं वो कोने के सरफेस बचे हुए हैं, क्योंकि उस स्फीयर उस हेमिस्फीयर ने उसको पूरा ढका नहीं है, उसके एग्जैक्टली उसके ऊपर फिट हुआ है वो। इसीलिए अभी ये 4 सरफेस बच गए हैं। ये 4 सरफेस का एरिया कैसे निकलेगा? ये 4 सरफेस का एरिया निकलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ये साइड है, इस स्क्वायर की साइड कितनी है? ए है। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल करोगे तो ये जो 4 पोर्शंस हैं हमारे पास में, इनका कोई शेप नहीं है। ये ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल नहीं है कि अपन इनमें फॉर्मूला लगा के निकाल लें। ये ऐसे ही कैलकुलेट होंगे कि टोटल में से सर्कल वाला पार्ट आप माइनस कर दोगे तो इन चारों का एरिया आ जाएगा। तो कितना हो गया? देखो 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया 6a स्क्वायर, 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर हो गया πr स्क्वायर। अभी हो जाएगा 6 इंटू a की वैल्यू है 7, r की वैल्यू है 7/2, तो ये हो जाएगा आपका 49 6 49
ये इतना हो जाएगा 49/4 इंटू 24 प्लस पाई, और आप चाहें तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू आप रख करके 22/7 हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं। आप जानते हैं पाई की वैल्यू रख करके भी आप उसे भी निकाल सकते हैं, उसे और आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं कर देता हूं उसको भी कैलकुलेट, क्योंकि बुक में जो आंसर दिया है वो आएगा नहीं, तो आप कहोगे बुक का आंसर नहीं आया। So this will be the answer which is given at the back of the book, NCERT book. So this is the last the question. Now the next question is the same question, same as question number, the question 4 we have discussed. Question number 5 will be same. How it will be same? Because here what they are doing, same cube we are having, but what they are doing, they are placing the hemisphere not like this but like this, that goes inside the surface, and a hemispherical scoop will formed there. एक हेमिस्फेरिकल स्कूप बनेगा वहां पर उस जगह पर, और वो गहराई में बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, आप समझ गए मेरी बात? मतलब आपको अभी पहले क्या था, पहले ये सरफेस था, इसके ऊपर आपने हेमिस्फीयर रखा था। अब ऐसा नहीं है, ऊपर नहीं रखा है हमने, हेमिस्फीयर को यहां पर गड्ढा करके और ऐसे नीचे की तरफ लगा दिया है। मतलब कि इसी में ऐसा स्कूप किया है, इस तरह से इसको खोदा है, क्योंकि ये तो सॉलिड क्यूब है, इसको खोदा है कि वहां पर कैसा ऐसा करके इंप्रेशन बन जाए, एक हेमिस्फेरिकल इंप्रेशन बन जाए, ये हमने कोशिश की है। तो यहां पर भी टोटल सरफेस एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, देखिए 5a² तो रहेगा, क्योंकि हमने उसके बाकी सरफेसेस को नहीं छेड़ा है, हमने सिर्फ एक सरफेस में परिवर्तन करा है। 5 सरफेस जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, और इसको L² कर दो, क्योंकि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है उसने L बताया है, साइड ऑफ स्क्वायर जो है A है हमारा, तो A की जगह पर L लिखेंगे। फिर दूसरे पार्ट में आप देखिए तो 5L² वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन जो आपने हेमिस्फेरिकल स्कूप बनाया है उसका एरिया तो 2πr² ही रहेगा ना भाई। सरफेस जनरेट कहीं हो, सरफेस ऊपर बने या सरफेस नीचे बने, काउंट तो होगा ना वो सरफेस, तो इसीलिए 2πr² काउंट होगा। और फिर से यही बात आएगी, तो हम फिर लिखेंगे कि L², या अभी A लिखा रहने दो, फिर बाद में करेंगे चेंज इसको, A² माइनस πr²। तो ये एक्सप्रेशन फिर से वही का वही एक्सप्रेशन आ गया, और ये हो गया 6a² प्लस πr²। अब डायमीटर जो है वो L है, तो 6L² प्लस पाई, अगर डायमीटर L है तो रेडियस क्या हो जाएगा, L/2², 6L² प्लस पाई L²/4। सो L²/4 अगर अपन कॉमन लें तो क्या बचेगा, पाई प्लस 24। तो इस प्रकार से ये सवाल भी ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हम कर लेंगे। नाउ
Let's move on to the next question. And the question is, a Bredesen capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck at each end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. The length of the entire capsule The length of the entire capsule is 14 millimeter, while the diameter of the capsule is 5 millimeter. The surface area of the capsule, surface area of capsule, 2 into cut surface area of हेमिस्फीयर, 2 इंटू क्यों करा? क्योंकि इस तरफ एक हेमिस्फीयर लगा है, इस तरफ हेमिस्फीयर लगा है, दोनों हेमिस्फीयर जो हैं वो एक जैसे हैं, इसीलिए उनमें कोई अंतर नहीं होगा एरिया में। तो जो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो 2 बार लिखा जाएगा, इधर के लिए और इधर के लिए, और दूसरा आएगा कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि कैप्सूल जो है वो बीच में सिलेंडर है और दोनों कोनों पर हेमिस्फीयर है। सिलेंडर का कट सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन लिया, बचेगा 2r प्लस एच, और वैल्यूज डाल दो इसके बाद में। जो वैल्यूज हैं वो हैं 2 पाई r, द वैल्यू ऑफ r विल बी 5/2, अब इसका भी हमें सिलेंडर का एच निकालना पड़ेगा। इसका रेडियस जो है डायमीटर 5 है तो इसका रेडियस 2.5 हो जाएगा, डायमीटर 5 है तो इसका रेडियस 2.5 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे डायमीटर कितना है? 5 है। डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2.5। तो ये रेडियस होता है और ये भी रेडियस ही होता है हेमिस्फीयर में। तो यहां पर 2.5 और यहां पर 2.5 अगर हम कम कर दें पूरे 14 में से तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो x की जगह पर अपन क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी लाइक दिस, 2 to 110/7 into 9 plus 5 14, so it will be 220 millimeter square। कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, अगर आपके कैलकुलेशन में एरर आ गई तो आंसर सही नहीं आएगा। आंसर सही नहीं आएगा तो आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिल सकते, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए आंसर सही निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आंसर सही कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर आप यहां पर अलग अलग निकालते तो कभी भी आपका ये आंसर नहीं आता। अगर आपने कंबाइंड करके निकाला, फिर कॉमन लिया, फिर सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज हमेशा एक्सप्रेशन बनने के बाद कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद में सब्स्टिट्यूट करनी है आपको वैल्यूज, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अभी इसमें इतना ही, बाकी फिर अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।